Welcome champs to English Kapotli and I am Avijit Rakshit and today this is the Julius Caesar's Act 1 Scene 2. This is the part 2. Okay, come on. I have already given a video regarding the Act 1 Scene 2 part 1 means I have taught up to line number 138 and remaining line today will proceed. तो आप सभी को शायद पहला वाला एक्ट 1 सीन 2 समझ में आ गया होगा. इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, आप लोगों को कोई भी दिक्कत आता है तो चैम्प्स प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स सेक्शन में बताइएगा. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम ऑल डाउट्स आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई. तो फिर शेक्सपियर कैसा लग रहा है और मजा आ रहा है? जूलियस सीजर बिल्कुल मजा आ रहा है. एंड डोंट बी नर्वस, कोई दिक्कत नहीं है, मजे करेंगे, पढ़ेंगे. कम ऑन, आज का क्लास शुरू करते हैं ऑफ एक्ट 1 सीन 2 लाइन नंबर 138 का बाद से. कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. See, I have already taught up to here and bear the palm alone. We have already ended the speech of Cassius. And now see, from today there is another shout of flourish was there and this is the Brutus's speech. आज ये Brutus का speech है. Another general shout means फिर से चीख आता है, शोर आता है. Another general shout was there. I do believe that these applauses means these shoutings means ये जो clappings है, these all claps हो रहा है, शोर हो रहा है, चीख हो रहा है. मुझे लग रहा है for some new honors that are heaped on Caesar. I think that some new honors are given to Caesar. Caesar को शायद कुछ new honors मिला है. Now this is the Cassius speech. Why man he doth destroy the narrow world? क्यों भाई? Why this man will just stand with one leg on one side and the second on the other side like a colossus? देखो चैम्प्स, ये कोलोसस जो है ना, कोलोसस इज द स्टैचू ऑफ गॉड एपोलो. तो ये एपोलो का मूर्ति रोड्स बोल के एक शहर है. देयर इज अ सिटी ऑफ कॉल्ड रोड्स एंड इन द हार्बर दिस जायंट स्टैचू इज देयर. ये बहुत बड़ा एक स्टैचू है जिसका एक पैर एक जगह में है और एक पैर दूसरा जगह में है. तो बीच में से ऑल द शिप्स यूज टू गो मीन्स two legs either on the side of the entrance of the harbor. Two legs either on the side of the entrance of the harbor. Harbor का entrance में ये स्टैचू है और इस स्टैचू का पैर का नीचे से all the ships used to go. दिखाता हूं कैसा है. This is the statue of the Colossus. देखो यहां पर one leg is on one side of the harbor and another leg is on the other side of the harbor. और यहां पर देखो उसका दो पैर का नीचे से in between the two legs the ship is going. Okay, followed champs? Come on, let us start. Cassius is telling that we will be just like petty human beings. We will be just like human beings, petty human beings. And Julius Caesar वो Colossus का जैसा खड़ा रहेगा. Julius Caesar will stand like Colossus. Okay. And we will means that Colossus, you have already seen the statue of Colossus. It is the statue of God Apollo. It is found in the town of Rhodes. Okay. So walk under his huge legs and peep about to find ourselves dishonorable graves. We will just walk under his huge legs. ये जो व्यक्ति है ये कोलोसस का जैसा खड़े रहेंगे. He will just remain standing like Colossus and we will walk under his huge legs to find ourselves dishonorable graves. और हम लोग को छिपने के लिए dishonorable graves मतलब ग्रेव्स यू नो जहां पर आदमी को दफनाया जाता है, तो वहां पर वो ग्रेव्स में छिपने के लिए हम लोग इधर उधर भागते रहेंगे. Men at some time are masters of their fate. You know, men, once upon a time, men are in control of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlying. You see, ये हमारा own fault है. हमारा डेस्टिनी, हमारा स्टार्स हमें नहीं कंट्रोल कर रहा है. वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर स्टार्स, बाय आवर डेस्टिनी, बट वी आर आवरसेल्व्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन. यू नो, ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर? भाई सीजर में अलग क्या है? सीजर कोई क्या बहुत बड़ा तोप है क्या? कोई अलग सा आदमी है? ओके, व्हाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स? तुम्हारा नाम और सीजर का नाम में सीजर का नाम ज्यादा साउंडेड क्यों होगा? सीजर में क्या स्पेशलिटी है भाई? व्हाट इज द कुछ अलग चीज है? इफ एनी डिफरेंस इज देयर,
if isn't it difference is there in the name of Caesar? Write them together. अगर दोनों को एक साथ लिखा जाएंगे, if you write both the names, write them together, yours is as fair a name. अगर दोनों का नाम लिखा जाएगा तो क्या बोल रहा है? इफ योर दोनों का नाम लिखा जाएगा, yours is as fair. Sound them together, it doth become the mouth as well. If both the names are pronounced together, both will sound good. Weigh them, it is as heavy. दोनों का नाम को अगर वजन किया जाता है, इफ इट इज वेट विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस, दोनों का नाम में दैट सॉर्ट ऑफ वेट इज देयर. कंज्यूर देम मीन्स इफ यू आर यूटिलाइजिंग दैट वन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूर? कंज्यूर मतलब अगर कोई भी मैजिकल स्पेल बनाया जाता है, तो ब्रूटस विल स्टार्ट अ स्पिरिट एज सून एज सीजर. जैसा ब्रूटस का नाम को भी अगर यूटिलाइज किया जाता है फॉर अराइजिंग अ स्पिरिट, तो Brutus's name will be same just like Caesar. Now, in the names of all the gods at once, upon what meat doth this our Caesar feed, that he is grown so great? लेकिन अब मुझे ये बताइए कि इफ यू मैंने अभी ये बताइए भाई, सीजर ने क्या अलग खाया? सीजर का अलग खाना क्या था? व्हाट अदर फूड ही हैज कंज्यूम्ड कि सीजर अभी इतना पावरफुल बन गया? Age thou art shamed means this is the shame of our present time. We should be shameful of our present time. Rome, thou hast lost the breed of noble bloods. Oh Rome, you have already lost to give birth to noble bloods. When there was an age, एक ऐसा जमाना था, ऐसा एज था, since the great flood, जब एक बहुत बड़ा रोम में एक फ्लड आया था. The name of that flood was Deucalion. उस समय में भगवान जायोस भगवान ठीक किया था कि टोटल रोम को डिस्ट्रॉय करेंगे. He has already thought of destroying the whole of Rome. And उसमें कोई जो भी पाप है, वो पाप को खत्म करना है, बिकॉज रोम में बहुत पाप छा गया था. There was a lot of sin. And that is why Zeus has thought to destroy the world because of the sins of men. लेकिन उस फ्लड में एक कपल को जायोस भगवान सेव किया था. जायोस हैज सेव्ड वन कपल. उसका नाम था ड्यूकैलियन एंड उनका जो वाइफ का नाम था पेरा. तो उस फ्लड का बाद से रोम में कभी कोई नोबल ब्लड पैदा नहीं हुआ. आफ्टर दैट फ्लड, तो देयर इज नो नोबल ब्लड हैज बॉर्न, बट इट वाज फेम्ड विथ मोर देन वन मैन. व्हेन कुड दे से टिल नाउ दैट टॉक्ड ऑफ रोम that her wide walks encompassed but one man. Now see champs, ये जो this one ये line, when could they say till now that walked of Rome, that her wide walks encompassed but one man. यहां पर बोला जा रहा है, when could anyone speaking of Rome say before now that just one man ruled the entire city. आज से पहले रोम में क्या कभी ऐसा सिचुएशन था कि रोम में खाली एक जन का रूल था? ओनली वन पर्सन्स रूल वाज देयर. बट टुडे यू सी, नाउ इट इज रोम. इंडीड द रूम एनफ व्हेन देयर इज इन इट बट वन ओनली मैन. लेकिन आज सही में इंडीड नाउ रोम हैज ओनली द रूल ऑफ अ वन मैन, दैट इज नन अदर देन जूलियस सीजर. ओके, अभी जूलियस सीजर का सोल रोल है, दैट इज अ कंप्लीट मोनार्की. फॉलोड चैम्प्स? ओ यू एंड आई हैव हर्ड आवर फादर्स से देयर वाज अ ब्रूटस वंस दैट वुड हैव brooked the eternal devil to keep his state in Rome as easily as a king. तो यहां जो ब्रूटस है चैम्प्स, ये जो ब्रूटस है, दिस इज द नेम ऑफ दिस ब्रूटस is Lucius Junius Brutus. This Brutus, who was responsible for expelling the Tarquins from Rome in 510 BC. अभी जो ये मार्कस ब्रूटस है, इसे कहा जाता है he is the descendant of that Lucius Junius Brutus. तो केशियस ब्रूटस को बता रहा है, भाई आपका जो एंसेस्टर्स था, they were so very powerful, लेकिन वही एंसेस्टर का आप डिसेंडेंट है, यू आर द डिसेंडेंट ऑफ दैट एंसेस्टर्स, लेकिन आप में वो पावर कहां है? वेयर इज दैट पावर इन यू? नाउ दिस इज द ब्रूटस स्पीच दैट
यू डू लव मी, आई एम नॉट जेलस। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करते, यू डू रियली लव मी, आई हैव नो डाउट इन दैट वन। वॉट यू वुड वर्क इन मी, आई हैव सम एम। आप मुझ में क्या चाहते हैं, वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, आई हैव सम एम। मैंने भी कुछ प्लान किया है। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दीज टाइम्स, आई शैल रिकाउंट हियर आफ्टर। मैं इस परिस्थिति का, अभी का जो सिचुएशन है इसका साथ मैंने, व्हाट इज माई एम, मेरा क्या प्लान्स है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्लोज विथ यू, ये सभी का बारे में आपको मैं बताऊंगा। फॉर दिस प्रेजेंट आई वुड नॉट, लेकिन अभी इस सिचुएशन में मैं आपका साथ कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सो इन लव आई माइट एंट्रीट यू, मीन्स आई जस्ट रिक्वेस्ट यू। सो इन लव, इसी प्यार से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बी एनी फर्दर मूव, वट यू हैव सेड आई विल कंसिडर। आप मुझे जो भी बताया, वट एवर यू हैव ट्राइड टू मेक मी अंडरस्टैंड, आई विल थिंक ओवर इट, कंसिडर इट। दैट what you have to say I will with patience hears। फिर भी इन फ्यूचर में आपको अगर और कुछ कहना है, मैं पेशेंटली उसे सुनूंगा। एंड फाइंड ए टाइम बोथ मीट टू हियर एंड आंसर सच हाई थिंग्स। फ्यूचर में किसी एक समय में दोनों मिलके बैठेंगे एंड वी विल डिस्कस ओवर इट, वी विल जस्ट वर्क ओवर इट। टिल देन माई नोबल फ्रेंड च्यू अपॉन दिस, टिल देन माई नोबल फ्रेंड थिंक अबाउट दिस। Brutus had rather be a villager than to repute himself a son of Rome। सी चैम्प्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो ब्रूटस का जो दिस वन लाइन इज देयर, ब्रूटस हैड rather be a villager than to repute himself a son of Rome। मीन्स ब्रूटस यहां पर बोल रहा है कि आई वुड प्रेफर टू बी ए विलेजर देन टू repute himself a son of Rome under this hard conditions at this time is like to lay upon us। देखिए ब्रूटस, मैं अपने आप को कंसीडर करूंगा कि आई विल ट्राई टू बी अ, मैं अपने को विलेजर कहने में भी मुझे कोई शर्म नहीं लगेगा। रेदर देन टेल माई सेल्फ एज सिटीजन ऑफ रोम, एंड आई शैल नेवर ट्राई टू लिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ दिस सिचुएशन। अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो ऑपरेसिव सिचुएशन में, उस ऑपरेसिव सिचुएशन में मैं रहने का कभी कोशिश नहीं करूंगा। आई विल ट्राई जस्ट टू एंड दिस ऑपरेसिव सिचुएशन। Cassius, I am glad that my weak words have struck much thus show of fire from Brutus। Cassius तो बहुत मजा आ गया कि Cassius अभी समझ में आया Cassius को कि Brutus को कुछ ना कुछ समझ में आया है। Cassius now really understood that I am able to anyhow persuade Brutus। मैं Brutus को किसी भी तरह से persuade कर सका हूं। I am, that means उसका जो प्लान था चैम्प्स, सक्सेस तो हुआ ना। तो उसका प्लान क्या था कि ब्रूटस को किसी भी तरह से, उन लोगों का जो कॉन्स्पिरेसी ग्रुप है, किसी भी तरह से ब्रूटस को वहां पर लेके आना। बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ब्रूटस बहुत ही नोबल कैरेक्टर है। किसी तरह से अगर ब्रूटस उन लोगों का कॉन्स्पिरेसी में आ जाता है तो उनका कॉन्स्पिरेसी को एक बहुत फ्रूटफुल ऑब्जेक्टिव रहेगा और सिटीजन्स दे विल हैव फेथ इन देम। ठीक है, अगर उन लोगों कुछ भी जो स्टेप लेंगे इन फ्यूचर, वट एवर द स्टेप्स दे विल टेक इन द फ्यूचर, सिटीजन्स विल थिंक दैट नो, ये जो स्टेप्स हुआ है ये स्टेप शायद सही हुआ है क्योंकि उसमें ब्रूटस है। बिकॉज ब्रूटस इज वन ऑफ द मोस्ट नोबलेस्ट पर्सन ऑफ रोम। आई एम ग्लैड दैट माई वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक बट सच मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस। भाई मैं बहुत खुश हूं दैट देयर इज सम चेंज, देयर इज अ शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस, दैट आई एम एबल टू इग्नाइट ब्रूटस। फॉलोड नाउ। चलिए चैम्प्स, एंटर सीजर एंड हिज ट्रेन। तो सीजर का साथ, सीजर का और भी जो साथी, ट्रेन मींस हिज ऑल हिज ऑफिशियल्स, वो सब आता है। एवरीबडी कम्स अलोंग विथ हिम, मींस देयर वाज अ बैंड ऑफ फॉलोअर्स वाज देयर। ब्रूटस, द गेम आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग। मींस द गेम, मैंने अभी तो आप लोगों को पता ही है, इसका पहला वाला वीडियो में कहा था मैंने कि अभी ल्यूपरकल फेस्टिवल चल रहा था, द रेस ऑफ ल्यूपरकल वाज देयर and the race of Lupercal has ended. The games are done and Caesar is returning. Cassius, as they pass by, Casca by the sleeve, and he will after his hour fashion tell you what hath proceeded worthy note today। तो यहां पर Cassius बोलता है कि ठीक है, अभी कुछ देर का बाद में यहां से कैस्का पास करेंगे एंड विल प्लक कैस्का, कैस्का को पकड़ेंगे by the sleeve।
ओके, हम लोग वी विल जस्ट प्लग कैस्का बाय द स्लीव, हम लोग कैस्का को पकड़ेंगे बाय द स्लीव एंड ही विल आफ्टर इज सार फैशन टेल यू, और वो अपना फैशन मीन्स अपना वे ऑफ, जिस तरह का वो माने इन हिज ओन वे, इन हिज ओन स्टाइल, ही विल जस्ट एक्सप्लेन अस, कि हमें बताएंगे कि क्या क्या हुआ था रेस में। चलिए, ब्रूटस, आई विल डू सो, बट लुक यू केशियस, द एंग्री स्पॉट दैट ग्रो ऑन सीजर्स ब्रो। लेकिन केशियस देखो, सीजर बहुत गुस्से में आ रहा है। देयर इज एन एंग्री स्पॉट दैट ग्लो ऑन सीजर्स ब्रो एंड ऑल द रेस्ट लुक लाइक चिडन ट्रेन। और बाकी सब सीजर का साथ जो आ रहा है, दे वेर लुकिंग अपियरिंग एज इफ दे हैव बीन स्कोल्डेड, मींस पूरा जो फॉलोअर्स था ऐसा लग रहा था मानो इनको कोई डांट दिया है। कल्पूर्नियस चीक इज पेल, कल्पूर्निया को भी देख के लग रहा है शी हैज बिकम वेरी पेल, बहुत ही सैड लग रहा है। एंड सिजरो लुक्स विथ सच फ्रेट एंड सच फियरी आईज एज वी हैव सीन हिम इन द कैपिटल। सिजरो, ही इज अ सेनेटर, सिजरो को भी देख के लग रहा है कि ये जो, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फेरेट? फेरेट का मतलब है रैट, ही इज हैविंग अ रैट लाइक अपीयरेंस with red eyes, as we have seen in the Capitol। जिस तरह से वो कैपिटॉल में नजर आते हैं, देख के लगता है कि मानो बहुत गुस्सा में है। कोई भी सीनेटर्स अगर कोई प्रश्न उनसे पूछता है, इफ एनी सीनेटर आस्क हिम एनी क्वेश्चन, ही अपीयर्स टू बी वेरी annoyed, गुस्से में लाल हो जाता है, जस्ट लाइक अ रैट, ही अपीयर्स जस्ट लाइक अ रैट विथ रेड आईज। Cassius, see Cassius' speech is there, Casca will tell us what the matter is। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैस्का हमें बताएंगे कि क्या हुआ। नाउ दिस इज द स्पीच ऑफ सीजर। सीजर इज टेलिंग एंटोनियस, एंटोनी, सीजर, सीजर, let me have men about me that are fat, let me have men about me that are fat, sleek-headed men and such as sleep o' nights। Yon Cassius has a lean and hungry look, he thinks too much, such men are dangerous। तो वो सीजर एंटोनी को बोलता है, मीन सीजर इज टेलिंग टू एंटोनी कि देखो, मुझे आई वांट पर्सन्स हु आर फैट, स्लीक हेडेड मीन्स वेल कोम्ड, जिसका हेयर्स आर वेल कोम्ड, एंड सच एज स्लीप ऑन नाइट्स मीन्स the persons who sleep very soundly in the night। Yon Cassius has a lean and hungry look। लेकिन वो जो देखो वहां पर केशियस खड़ा हुआ है, Cassius is having a very hungry appearance, he thinks too much, such men are dangerous। उस तरह का व्यक्ति बहुत डेंजरस होते हैं। एंटोनी, fear him not Caesar, he is not dangerous। Caesar कोई डरने का बात नहीं है, don't fear him, he is not dangerous, he is a noble Roman and well given, he is a very noble person and he is a well disposed person। Caesar, would he were fatter, अगर थोड़ा मोटा होता तो अच्छा होता था, but I fear him not, yet if my name were liable to fear, मुझे उनसे डर नहीं है, लेकिन अगर मेरा नाम उन लोगों में शामिल होता जो किसी चीज में डरता है, इफ माई नेम इज ऑल्सो नेम्ड विद दोज पर्सन who are liable to fear, means who is afraid of anything, I would not know the man I should avoid so soon as that spare Cassius। I will at that time would not avoid any other persons other than Cassius। उस समय में अगर मैं तो डरता नहीं हूं भाई, मैं तो मुझ में डर है ही नहीं, लेकिन अगर if I am such a type of person who can feel afraid, जिसे डर लगता है, अगर मैं वैसा व्यक्ति होता तो I would have not be afraid of any person other than Cassius। He reads much, he is a great observer, he is a very good observer of human characteristic, and he looks quite about through the deeds of men। He love no plays, उसे कोई भी नाटक पसंद नहीं है, कोई भी प्लेस पसंद नहीं है। As thou dost Antony, जिस तरह से एंटोनी तुम्हें कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है, प्लेस पसंद है, उस तरह से केशियस को किसी भी चीज में रुचि नहीं है। इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन अदर थिंग, ही हियर्स नो म्यूजिक, सेल्डम ही स्माइल्स, हंसता तो बिल्कुल ही नहीं, कभी कभी, वेरी रेयरली, हंसने से शायद बारिश हो जाता है।
एंड स्माइल्स इन सच ए सॉर्ट, और हंसता भी है, अगर कभी हंसता भी है इस तरह से हंसता है एज इफ ही मॉक्ड हिमसेल्फ एंड स्कॉन्ड हिज स्पिरिट दैट कुड बी मूव टू स्माइल एट एनीथिंग, एज इफ ही इज मॉकिंग द पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, अपना हंसी का खुद का मजाक उड़ा रहा है, उस तरह से हंसते हैं. He does it as if he is mocking the part of himself that could be inspired to smile by anything. Okay, come on, let us proceed. Such men as he be never at heart's ease. इस तरह का व्यक्ति कभी भी, ये इस तरह का व्यक्ति they were never at heart's ease. कभी भी शांत नहीं रहते, और इन लोगों का कभी भी हार्ट is not at ease, is not at rest, whilst they behold a greater than themselves, and therefore are they very dangerous. और ये कभी भी फुल सेटिस्फाइड नहीं होते, एंड दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ पर्सन्स आर वेरी डेंजरस. आई रैदर टेल दी what is it I rather tell thee what is to be feared than what I fear. देखो, मैं किसको डरता हूं, मैं तो किसी से भी नहीं डरता हूं. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी. लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं किस चीज से डरना है. फॉर ऑलवेज आई एम सीजर. मैं तो सीजर हूं. आई एम सच ए टाइप ऑफ पर्सन. मेरा नाम से लोग डरते हैं भाई, मुझे देख के लोग डरते हैं. मैं किसी से नहीं डरता हूं. मैं तो तुम्हें खाली ये बता रहा हूं तुमको किससे डरना चाहिए. कम ऑन माई राइट हैंड फॉर दिस ईयर इज डेफ. सीजर को जो अपना जो बाएं कान था, लेफ्ट ईयर था, उनसे उस कान में उनको कम सुनाई देता था. दैट इज वाई सीजर उन्हें रिक्वेस्ट करता है, कम ऑन माई राइट हैंड फॉर दिस ईयर इज डेफ एंड टेल मी ट्रूली व्हाट दाउ थिंकस्ट ऑफ हिम. और आप बताइए इनका बारे में आपका क्या ओपिनियन है. सीनेट सीजर एंड हिज ट्रेन एग्जिट. तो सीनेट और उनका जो ट्रेन मींस बाकी उनका जो फॉलोअर्स था सब चले जाते हैं, बट कैस्का रिमेन्स बिहाइंड. कैस्का रह जाते हैं. कैस्का, यू पुल्ड मी बाय द क्लॉक, व्हाट यू स्पीक विथ मी. भाई आपने मुझे मेरा कॉलर पकड़ के रोक दिया है, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं. ये कैस्का जो है ना, ये थोड़ा फनी टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है, थोड़ा मजाक टाइप का आदमी है, थोड़ा फूलिश भी है कैस्का. ब्रूटस, ये कैस्का. टेल अस व्हाट हैथ चांस टुडे. कैस्का आप बताइए कि व्हाट हैथ चांस, आज क्या हुआ. दैट सीजर लुक्स सो सैड, कि सीजर इतना दुखी क्यों है, भाई आप बताइए. कैस्का, व्हाई यू वर विथ हिम, वेर यू नॉट. भाई आप भी तो थे उसमें, आप भी तो रेस में थे, क्या आप नहीं थे. ब्रूटस, आई शुड नॉट देन आस्क कैस्का व्हाट हैड चांस्ड. अगर मैं वहां रहता कैस्का तो मैं आपसे ये बात नहीं पूछता था. आई वुड नॉट हैव आस्क्ड कि व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ. कैस्का, व्हाई देयर वाज अ क्राउन ऑफर्ड हिम. देखिए उनको एक क्राउन ऑफर किया गया था, एंड बीइंग ऑफर्ड हिम ही पुट इट बाय विद द बैक ऑफ हिज हैंड. जितना बार उनको क्राउन ऑफर किया गया, बारे बार अपना हाथ से क्राउन को, माने ही हैज नॉट रिजेक्टेड द क्राउन, क्राउन नहीं लेंगे. भाई ये तो पॉलिटिशियंस का टेक्निक है, सबको दिखाना है ना कि भाई मुझे पावर में कोई दिलचस्पी नहीं है. आई एम नॉट एट ऑल हंग्री फॉर पावर. सिटीजन्स को दिखाना है ना मुझे पावर में कोई दिलचस्पी नहीं है. आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पावर. मैं तो हर चीज अपने दिल से करना चाहता हूं. आई लव माई सिटीजन्स. मैं अपना सिटीजन्स के लिए प्यार है मुझे. नेता लोगों कहते रहते हैं ना, दे मेक अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस. अब दिखाता है अपने आप को कि भाई मैं एकदम ऑनेस्ट नेता हूं. तो सीजर भी दिखा रहा है कि भाई मैं ऑनेस्ट है, मुझ में कोई मन, आई एम नॉट हंग्री फॉर पावर. चलिए भाई, चलो 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 चलते हैं, क्या हो रहा है. वाई देयर वॉज अ क्राउन ऑफर्ड हिम एंड बीइंग ऑफर्ड हिम ही पुट इट बाय द बैक ऑफ हिज हैंड thus and then the people fell a shouting. तो इस तरह का जो माहौल सिचुएशन क्रिएट किया था सीजर. ओके, तो ऑल द जो भी सिटीजन्स था उन लोगों को तो मजा आ गया, भाई कैसा राजा है, देखो इसको पावर का कोई, ही इज नॉट हंग्री फॉर पावर, इन्हें पावर नहीं चाहिए, राजा नहीं बनना चाहता. सभी सिटीजन हो करके शोर मचा रहे थे. मजा आ रहा है ना उन लोगों को, देखो भाई इतना ऑनेस्ट है तो हमारा डिसीजन गलत नहीं है, सीजर को हम लोग राजा मानेंगे. ये सब डिसीजन यू ऑलरेडी नो. ये जो सिटीजन्स है ना ये बहुत फिकल माइंडेड होते हैं. कम ऑन लेट अस स्टार्ट. ब्रूटस, व्हाट वाज द सेकंड नॉइस फॉर. ब्रूटस फिर उनसे पूछते हैं कि भाई वो जो दूसरा आवाज था वो किस कारण था. कैस्का, व्हाई फॉर दैट टू, सेम रीजन.
केशियस, दे शाउटेड थ्राइस, भाई 3 बार चीखे थे. व्हाट वाज द लास्ट क्राई फॉर? ये लास्ट क्राई किसके लिए था? कैस का. व्हाई? फॉर दैट टू, भाई लास्ट क्राई भी उसी लिए था. Was the Brutus asked, was the crown offered him thrice? 3 बार उनको क्राउन दिया गया था. Means he was offered the crown 3 times. Casca, a Mary, for was it, and he put it by thrice. 3 times the crown was offered to him. तीनों बार उन्होंने क्राउन को लेने से इनकार किया. For the 3 times only he has rejected the crown. And at every putting by my honest neighbor shouted. और जब जब वो क्राउन्स को रिजेक्ट कर रहा था, जितना भी सिटीजन्स था, they all shouted. Cassius, who offered him the crown? Casca, why? Antony. Brutus, tell us the manner of it, gentle Casca. तो आप बताइए किस तरह से क्राउन को ऑफर किया गया. नाउ कैस्का बोल रहा है कि आई कैन एज वेल बी हैंग्ड एज टेल द मैनर ऑफ इट. भाई किस तरह से उन लोगों ने ऑफर किया वो तो मैं पूरा एक्ट करके नहीं दिखा पाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू एक्ट लाइक दैट. इट वॉज मियर फूलरी, ये तो पूरा स्टुपिडिटी था. आई सॉ मार्क एंटनी ऑफर हिम ए क्राउन, येट इट वॉज नॉट ए क्राउन नीदर, इट वॉज वन ऑफ दीज कोरोनेट्स. देखिए कोई क्राउन तो जैसा नहीं था, एक छोटा सा रित जैसा था, एक छोटा सा क्राउन जैसा था. एंड एज आई टोल्ड यू ही पुट इट बाय वंस, बट फॉर ऑल दैट टू माई थिंकिंग ही हैड फेन हैव हैड इट. लेकिन देखो यहां पर चैम्स क्या बोल रहा है कैस्का, बट फॉर ऑल दैट टू माई थिंकिंग, माने जो मैं सोचता हूं, एज फार एज माई थिंकिंग, ही वुड फेन हैव इट. लेकिन उनको इच्छा लग रहा था, उन्हें क्राउन लेने का शौक था. he wanted to have that crown. He would fain have it. उन्हें क्राउन लेने का इच्छा था. He was having a desire to have that crown. When he offered it him again, then he put it by again. जब फिर उन्हें दूसरा बार ऑफर किया गया, in the second time also as rejected. But to my thinking he was very loth to slay his fingers of it. लेकिन सेकेंड टाइम जब उनको क्राउन को ऑफर किया गया है ना, तो वो बहुत धीरे से, मीन्स लोथ, LOATH, मीन्स बहुत ही धीरे से, मीन्स ही वॉज रिलक्टेंट, ही वॉज अनविलिंग. तो उन्हें उस समय में क्राउन पहनने का इच्छा था, लेकिन ऐसा दिखा रहा था कि मानो उन्हें क्राउन नहीं पहनने का इच्छा. ही वॉज एक्टिंग कि मुझे क्राउन नहीं लेना है. He was very loth to lay his fingers off it, and then he offered it the third time. He put it the third time by, and still as he refused it, the rebelmen hooted and clapped their chopped hands and threw off their sweaty nightcaps and uttered such a deal of stinking breath. लेकिन थर्ड टाइम जब सीजर ने क्राउन नहीं किए लिया, तो देयर वाज अ कंप्लीटली शाउटिंग वाज देयर. पीपल का तो खुश हो गया, भाई मेरा राजा है, हमारा प्यारा राजा है, इन्होंने क्राउन नहीं लिया. द थर्ड टाइम बाय, एंड स्टिल एज दे रिफ्यूज्ड इन द रेबलमेंट हूटेड. द रेबलमेंट मीन्स, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेबलमेंट? रेबलमेंट का मतलब है द मॉब, मीन्स द क्राउड ऑफ सिटीजन्स. हूटेड मीन्स दे जस्ट shouted and clapped their chopped hands, means clapped their rough hands. तो ये देखो, ये मजदूर लोग हैं, they are all laborers. तो हाथ में काम करते करते तो इन लोगों का हाथ रफ हो जाता है. तो that is why they are called chopped hands, means they are rough hands. And through their nighties sweaty night caps. तो उन लोगों को जो नाइट कैप्स पहनते थे, it was full of sweat. तो सभी काम करके पसीना आ जाता था. That is why the caps used to become full of sweat. And they threw their sweaty caps and uttered such a deal of stinking breath. और चारों तरफ एक बहुत ही stinking breath, मीन्स ऐसा एक फाउल एयर में गंदा स्मेल, पसीने का बदबू जैसा होता ना, तो उस तरह का पसीने का बदबू आ गया था. इट वॉज अ वेरी फाउल एयर वॉज देयर बिकॉज ऑफ द स्वेट के कारण पसीने का बदबू आया था. एंड uttered such a deal of stinking breath because Caesar refused account that it had ऑलमोस्ट चोक्ड सीजर. तो उस समय में क्या हुआ कि इस तरह का फाउल ब्रेथ का कारण सीजर एड ऑलमोस्ट चोक्ड. सीजर का एकदम पूरा ब्रेथ बंद हो गया, मीन्स ही वाज ऑलरेडी सूनिंग, माने उनको सेंसलेस हो जा रहा था. फॉर ही सून्ड एंड फेल डाउन एट इट. सीजर बेहोश हो जाता है और गिर जाता है.
And for mine own part, I durst not laugh for fear of opening my lips and receiving the bad air. भाई मुझे तो डर लग रहा था. आई हैव नॉट ओपन माई लिप्स. मेरा तो मैं पूरा मुंह को बंद रखा कि मुझे डर लग रहा था. क्या मानो यार, इतना गंदा स्मेल आ रहा था. मेरा मुंह खोलने से मेरा अंदर ना चले जाए. मीन्स आई वॉज फीलिंग सो अफ्रेड. मुझे भरपूर डर लग रहा था, इसके लिए मैंने अपना मुंह बंद रखा था भाई. नाउ केशियस. But soft I pray you, what did Caesar soon? Caesar बेहोश हो गया था. कैस्का. He fell down in the marketplace and foamed at mouth and was speechless. सही में मैं गलत नहीं बोल रहा हूं. मार्केट प्लेस में गिर गए थे and foamed at mouth, और पूरा मुंह से there was a foam was there and he was speechless. Brutus. It is very like he had the falling sickness. देखिए, सीजर इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी. ये बहुत नॉर्मल है. सीजर इज हैविंग अ फॉलिंग सिकनेस. एपिलेप्सी ये एक डिजीज है जहां पर भी आदमी होश खो देता है. मीन्स लॉस्ट हिज सेंसेस. तो अपना सेंस खो जाता है. ओके, दिस इज अ डिजीज. तो सीजर वाज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज. केशियस. नो, सीजर हैथ इट नॉट, but you and I, an honest cash cow, we have the falling sickness. सीजर का कोई फॉलिंग सिकनेस नहीं है. वी आर हैविंग द फॉलिंग सिकनेस. यू, माई सेल्फ एंड कैस्का, वी आर हैविंग दिस फॉलिंग सिकनेस. इसका मतलब केशियस यही कहना चाहता है चैम्प्स कि सीजर इज ग्रोइंग टू बी अ मोनार्क. धीरे धीरे सीजर अपना मोनार्की फैला रहा था. एंड हम लोग कौन, सीजर का नीचे. मीन्स वी विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ जूलियस सीजर. वी हैव टू वर्क अंडर हिज सप्रेशन. फॉलोड. यही बात बोला जा रहा है. नाउ कैस्का, एज यू ऑलरेडी नो, जो कैस्का है ना वो थोड़ा सिंपल है, ब्लंट हेडेड पर्सन है. कैस्का इज नॉट सो वेरी इंटेलिजेंट. एक्चुअली केशियस जो बोला है, कैस्का इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वन. Casca tells, I know not what you mean by that, but I am sure Caesar fell down. If the tag-rack people did not clap him, you know what is the meaning of tag-rack? Tag-rack means low-class people, means the common people, the mob. If the tag-rack people did not clap him and hiss him, according as he pleased and displeased them, means tag-rack people, they clapped and they hissed him, and according to his pleasure and how he pleased them and how he displeased them, as they used to do the players in the theater. I am no true man. मीन्स जिस तरह से थिएटर में कभी कोई शो होता है, जब हाउ दे क्लैप, हाउ दे शाउट, तो इन द सिमिलर फैशन दे हैव शाउटेड एंड दे हैव थ्रोन देयर नाइट कैप्स, स्वेटी नाइट कैप्स. इस तरह का एक माहौल बनाया था, जस्ट एज इफ जिस तरह का माहौल उन लोगों थिएटर में करते थे when they used to go and watch the theater. तो उसी तरह का माहौल जूलियस सीजर का, जहां पर क्राउन का पहनाया जा रहा था, that situation has happened. Brutus. What say him when he come onto himself? What is the meaning of, means when he has become conscious, when he came onto himself, इसका मतलब है कि when he became conscious, when he regained his senses. Casca tells Mary, means indeed, before he fell down, when he perceived the common herd was glad he refused the crown, he plucked me ope his doublet and offered them his throat to cut. This means that when he saw that the crowd, the mob was very impressed, he has refused the crown, he plucked ope his doublet, means he has opened his cloak and offered them his throat to cut, and he has offered them to cut his throat. And I had been a man of any occupation, means if I would have been a laborer, अगर मैं कोई laborer होता, if man of any occupation means अगर मैं कोई laborer होता था, if I would not have taken him at word, I might go to hell among the rogues. Means if I would not have taken him at a word, अगर मैं common laborer होता था, undoubtedly I would have cut his throat. And so he fell. फिर सीजर गिर जाते हैं. When he came to himself again, means when he again regained his consciousness, he said, if he had done or said anything amiss, he desired their worships to think it was his infirmity.
If he had done or said anything amiss, means if he had done anything mistake, कोई अगर गलती किया है, he desired their worships to think it was his infirmity. सीजर चाहते थे, बताना चाहते थे, इफ आई हैव डन सम मिस्टेक इट इज बिकॉज ऑफ माई वीकनेस. मुझे आज आई एम वेरी वीक टुडे. 3 or 4 वेंचेस हियर आई स्टूड क्राइड अलास गुड सोल, मीन्स 3 or 4 वेंचेस. वेंचेस का मतलब है वुमेन. 3 or 4 women. Here I stood, alas, good soul, and forgave him with all their hearts. Means this women, they have forgiven them with all their hearts. Okay. But there is no heed to be taken of them. If Caesar had stabbed their mothers, they would have done no less. उन लोगों को कोई इंपॉर्टेंस देने का जरूरत नहीं है, बिकॉज द क्राउड वॉज कंप्लीटली मोटिवेटेड बाय सीजर. अगर इन द पास्ट सीजर हैज स्टैब्ड देयर मदर आल्सो, नो, दे हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन ऑल द इंसिडेंट. ये एक एग्जाम्पल है. मीन्स ये बोलना चाहता है, मैंने कैस्का ये बताना चाहता है कि अगर सीजर उन लोगों का साथ कोई मिस्टेक किया भी होगा, इफ सीजर हैज डन एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक in the past, they would have forgotten everything. That means they are completely motivated by Caesar. So this is the quality of Julius Caesar. ये एक राजनेता, एक politician, एक राजा का, this is the characteristic. Means how to control the mob. See, अगर mob को control किया जा सकता है, if you are having the public support, कुछ भी हो सकता है. You can do anything. Okay? Come on. फिर आगे चलते हैं चैम्प्स. देखो फिर हम लोग बढ़ते हैं. ठीक है. सी ब्रूटस एंड आफ्टर दैट ही केम द सैड अवे. तो इसी के बाद वो सैड होके क्यों आया? कैस्का, यस, ए मींस यस. केशियस, डिड सीजरो से एनीथिंग? केशियस ने पूछा कि सीजरो हैज सेन एनीथिंग. सीजरो इज आल्सो अ सीनेटर. कैस्का, ए ही स्पोक ग्रीक. यस, सीजरो हैज स्पोकन समथिंग बट दैट इज इन ग्रीक. ओके. कैस्का डोंट नो द लैंग्वेज ग्रीक. उन्हें ग्रीक का बारे में पता नहीं है. केशियस, टू व्हाट इफेक्ट, मीन्स व्हाट डिड ही से. टू व्हाट इफेक्ट का मतलब है व्हाट डिड ही से, क्या बोले थे वो. कैस्का, ने एंड आई टेल यू दैट आई विल नेवर लुक यू इन द फेस अगेन. यू सी, यहां पर बोल रहा है ने आई टेल यू दैट, मीन्स अगर मैं बोलता हूं, इफ आई एम टेलिंग वट एवर सीजरो हैज टोल्ड, दिस वुड बी एन लाई. And I will not be able to look into your face again. क्यों? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया. I can't understand anything. But those that understood him smiled at one another and shook their heads. जो कोई भी सीजरो का बात समझे थे, whoever was able to understand the language of Caesaro, तो सभी क्या किए थे? They smiled and shook their heads. माने सभी लोग हंसे थे और अपना माथा हिलाया था. बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी. और मेरे लिए क्या था? दिस इज अ ग्रीक टू मी, मीन्स आई कैनॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में ही नहीं आया. सी, आई कुड टेल यू मोर न्यूज टू मरूलस एंड फ्लेवियस. तो चैम्प्स, ये मरूलस एंड फ्लेवियस का बारे में तो आप लोगों ने पढ़े होंगे. यू हैव ऑलरेडी रेड इन एक्ट 1 सीन 1 दे वर द 2 ट्रिब्यून्स. एक्ट 1 सीन 1 में ये मरूलस और फ्लेवियस क्या कर रहे थे? सीजर जो पॉम्पे का साथ जो सिविल वॉर हुआ था, he has defeated Pompey and he has already killed the sons of Pompey. और वो अपना रिटर्न हो रहा था and all the crowd they were gathering to witness the victory of Julius Caesar. उसी समय में Marulus and Flavius were also there. Marulus, Flavius, they were annoyed that all the people they have forgotten Pompey. सभी लोग Pompey का बारे में भूल गए थे and everybody was celebrating the विक्ट्री ऑफ जूलियस सीजर. उसी समय में मरूलस एंड फ्लेवियस, उन दोनों क्या किया था? दे हैव डाइवर्टेड द मॉब. उस जगह से हटा देते हैं. फिर क्या करते? जितना भी डेकोरेशन सीजर का स्टैचू में था और रोम सिटी में वेरेवर द डेकोरेशंस वर देयर, दे हैव पुल्ड डाउन ऑल द डेकोरेशंस. एंड उसी का बारे में क्या हुआ, चलिए देखते हैं. आई कुड टेल यू मोर न्यूज टू मरूलस एंड फ्लेवियस फॉर पुलिंग स्कार्व्स ऑफ सीजर्स इमेजेस. मींस स्कार्व्स मींस डेकोरेशन. तो सीजर का जो स्टैचूज से जो डेकोरेशंस उतारा गया था आर पुट टू साइलेंस. दैट मींस दे आर पुट टू डेथ. फेयर यू वेल, देयर वाज मोर फूलरी येट इफ आई कुड रिमेंबर इट. मेनी अदर इंसिडेंट्स आर आल्सो देयर बट आई कैन नॉट रिमेंबर प्रॉपरली. मुझे अभी ठीक से याद नहीं है. ठीक है. तो अभी देखिए नाउ केशियस.
विल यू सप विथ मी टूनाइट कैस्का? तो नाउकेशियस कैस्का को इनवाइट करते हैं कि आप रात को हमारे साथ सपर में आएंगे? कैस्का, नो आई एम प्रोमिस्ड फोर्थ, मीन्स आई हैव अनदर इन्विटेशन, मुझे कहीं दूसरा जगह में जाना है। केशियस, विल यू डाइन विथ मी टुमारो? कैस्का, ए इफ आई बी अलाइव एंड योर माइंड होल्ड एंड योर डिनर वर्थ द ईटिंग। सपोज कल मैं जिंदा रहता हूं, इफ आई एम अलाइव, मैं अगर जिंदा रहता हूं, एंड योर माइंड होल्ड मीन्स यू आर हैविंग द नोशन ऑफ इनवाइटिंग मी टुमारो ऑल्सो, कल भी अगर आपका यही सोच रहेगा, एंड योर डिनर वर्थ ईटिंग, अगर आपका जो डिनर है वो खाने लायक होता है, तो ऑब्वियसली आई विल अटेंड योर डिनर। केशियस, गुड, आई विल एक्सपेक्ट यू, ठीक है मैं कल आपको एक्सपेक्ट करूंगा। देन कैस्का टेल्स, डू सो, फेयरवेल बोथ, नाउ ही एग्जिस्ट। तो कैस्का अब यहां से चले जाते हैं। चलिए उसका बाद फिर देखते हैं। नाउ दिस इज द स्पीच ऑफ ब्रूटस, व्हाट अ ब्लंट फेलो इज दिस ग्रोन टू बी, मीन्स हियर इसे ब्रूटस बोलते कि कैस्का हैज बिकम वेरी डल, देखो कैसा डल फेलो हो चुका है। ही वॉज क्विक मेटल, मीन्स ही वॉज हैविंग अ वेरी लाइवली स्पिरिट। यू नो मेटल जो है ना, METTLE, दिस इज अ पन, इसका दो मीनिंग होता है, एक होता है मेटल, METAL मीन्स जो मेटल होता है, और एक होता है मेटल मीन्स नेचर। तो ही वॉज क्विक मेटल मीन्स ही इज हैविंग अ वेरी लाइवली स्पिरिट, ही इज हैविंग अ वेरी लाइवली नेचर व्हेन ही वेंट टू स्कूल। जब वो स्कूल जाते थे, ही वॉज हैविंग अ वेरी लाइवली नेचर, बहुत ही लाइवली नेचर उनका हुआ करता था। नाउ केशियस टेल्स, सो इजी नाउ इन एग्जीक्यूशन, यस वही लवली स्पिरिट, दैट लाइवली स्पिरिट अभी भी उनका एग्जीक्यूशन में भी है, इफ ही इज डूइंग एनी वर्क of any bold or noble enterprise, means if he is given any work of bold or noble enterprise, he will be able to do that one very perfectly. However he puts on his tardy form, फिर भी वो थोड़ा सा tardy form है, means he appears to be very lazy, means उन्हें देख के लगता है कि वो थोड़ा lazy है। You know, this rudeness is a sauce to his good wit. Yes, कैस का थोड़ा रूड है, उनका थोड़ा रूड बिहेवियर है, बट दिस रूडनेस इज अ सॉस, मीन दिस इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। आप देखिए कोई भी फूड में इफ यू आर एडिंग अ सॉस, तो सॉस क्या करता है, फूड का टेस्ट को एनहांस करता है, मीन्स इट इंक्रीजेस द टेस्ट ऑफ द फूड। यहां पर इट इज बीइंग टोल्ड कि कैस्का का जो रूड बिहेवियर है, इट इज अ सॉस, मीन दिस इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर हिज गुड विट, फॉर हिज गुड इंटेलिजेंस। ओके, गुड विट का मतलब है गुड इंटेलिजेंस, which gives men stomach to digest his words with better appetite, and this is a good quality for him. That is why all the men, they are able to listen to him very attentively, which gives men stomach to digest his words, माने उसका उनका जो ये रूड नेचर है ना, it adds a spice to his good wit, excellent wit. All the men, they will be able to hear him with healthier appetite. ओके, मीन्स उन लोगों का सुनने का इच्छा और बढ़ जाता है, मीन्स कैस्का को सुनने का इच्छा और भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर। ओके, चलिए नाउ ब्रूटस, सो इट इज, फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू, हो सकता है लेकिन आज के लिए इतना दूर, आई एम गोइंग टू लीव यू टुडे। Tomorrow if you please to speak to me, means tomorrow if you want to speak to me, if you want to have a conversation with me, आपको अगर मुझसे कुछ बात करना है, हाँ, I will come home to you, मैं आपका घर आऊंगा। और if you will, अगर आपको आने का इच्छा है, if you want to come, और if you will, if you want to come, come home to me, okay, आप मेरे घर आ जाइए, and we will wait for you, and I will wait for you, sorry, and I will wait for you। Cassius, I will do so, टिल देन थिंक ऑफ द वर्ल्ड, उसके माने तब तक, अब हमारा बीच में जो डिस्कशन हुआ, वट एवर द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, वट एवर द वर्ल्डली अफेयर्स वी हैव डिस्कस्ड, आप जाके इसको थोड़ा सोचिएगा, यू जस्ट गो एंड थिंक ऑफ इट, आप जाके सोचिएगा। नाउ व्हाट हैपेंड, ब्रूटस एग्जिस्ट। सी नाउ व्हाट हैपेंड, Cassius is all alone in the stage, and this is a soliloquy of Cassius. You know what is a soliloquy? Soliloquy एक ड्रामा में, दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज, जहां पर ओनली द सिंगल एक्टर विल बी ऑन द स्टेज, एंड दिस सिंगल एक्टर इज गोइंग टू रिवील वट एवर इट इज गोइंग ऑन इनसाइड हिज माइंड।
तो यहां देखिए केशियस क्या बोल रहा है, वेल ब्रूटस thou art noble, रियली ब्रूटस यू आर अ वेरी नोबल पर्सन, आप बहुत ही नोबल पर्सन है, येट आई सी दाई ऑनरेबल मेटल, येट आई सी दाई ऑनरेबल मेटल, ये देखिए ये जो मेटल वो है ये एक तो पन है, अगेन दिस इज अ पन। तो मेटल का मतलब है एक होता है आपका मेटल, METAL मेटल, और एक होता है नेचर, मीन्स हियर केशियस वांट्स टू टेल, yet I see thy honorable metal, means your honorable nature may be wrought, means it can be made into given any shape। जैसे कि मेटल को भी हम लोग को पीट के मार के किसी भी तरह से वी कैन गिव अ शेप, ओके, मेटल्स को शेप दिया जा सकता है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। तो उसी तरह से आपका नेचर को भी कोई भी शेप दिया जा सकता है, फ्रॉम व्हाट इट इज डिस्पोज्ड, फ्रॉम व्हाट इज डिस्पोज, मतलब जिस तरह का नेचर है उस नेचर को हम लोग बदल सकते हैं। Therefore it is met, therefore it is met, therefore it is very proper, it is advisable that noble minds keep ever with their likes। तो it is very proper, ये बहुत सही बात है कि noble persons should always mix with the noble persons only। जो नोबल व्यक्ति है उन लोगों को, नोबल आदमी लोगों का साथ ही घूमना फिरना चाहिए, मेरे जैसा आदमी का साथ नहीं। तो केशियस को तो पता ही है that he is a very good judge of human character, and you see how he has, what job he has done। देखिए उसने क्या जॉब किया, ब्रूटस who was a friend of Caesar, आप सभी को तो पता है ब्रूटस सीजर का फ्रेंड है, so tactically, so intelligently he has motivated Brutus। See, now Brutus is just in a very confused state of mind, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रूटस हैज उनका साथ आ चुका है, टू सम एक्सटेंट ब्रूटस हैज come to the side of the conspirators। This is the quality of Cassius, how well he has motivated Brutus, किस तरह से उन्होंने ब्रूटस को मोटिवेट किया। That is why he is telling, यहां पर बोला जा रहा है who so firm, means ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना स्ट्रांग होंगे, who is so strong, so firm का मतलब है who is so strong that cannot be seduced, that cannot be motivated। कौन ऐसा व्यक्ति है जिनको मोटिवेट किया नहीं जा सकता है। Caesar doth bear me hard, I know that Caesar doth bear me hard, Caesar dislikes me, but he loves Brutus। If I were Brutus now, अगर मैं Brutus रहता and he were Cassius, I would not allow him to motivate me, to deviate me from my track। I will this night in several hands, means in different handwritings, you see several hand means in different handwritings, in at his window throw, means in different handwritings I will throw some letters in the window of Brutus। Brutus का घर में मैं कुछ letters throw करूंगा, as if they came from several citizens, मानो कोई ये letter कोई citizens, दूसरा कोई citizens लिखा है, it will be appear as if this has been written by the citizens। Writings all tending to the great opinion that Rome holds of his name। In all this writing it will be written as if that Rome is having a very good hope for Brutus। Brutus की माने everybody is thinking that Brutus is the savior, Brutus is very honest, Brutus truly loves his country Rome, and all the people they are having a lot of expectations from Brutus। ऐसा दिखाऊंगा लेटर्स में कि मानो कॉमन सिटीजन्स दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम Brutus, just to protect them, just to save from the monarch। Writings all tending to the great opinion that Rome holds to his name, wherein obscurely, उसी लेटर में हिडनली, we will write about what, we will write about Caesar's ambition shall be glanced at। ओके, तो वहां पर ही हम लोग को सीजर का जो एम्बिशियस नेचर है, सीजर क्या करना चाहता है रोम में, सीजर जो मोनार्की फैलाना चाहता है, मोनार्की स्प्रेड करना चाहता है, दैट वन विल आल्सो बी रिटन इन द लेटर। एंड आफ्टर दिस लेट सीजर सीट हिम सिक्योर। इसके बाद आफ्टर दिस इंसिडेंट आई वांट दैट सीजर शुड सिक्योर हिज सीट, फॉर वी विल शेक हिम। हो सकता है कि हम लोग उन्हें हिला देंगे, हिला के फेंक देंगे, ऑफ और वर्स डेज इंड्योर, और वी माइट हैव टू फेस वर्स डेज, या हम लोगों को खराब दिन का फेस करना पड़ेगा, और वी मे हैव टू फेस बैड डेज, वर्स डेज। देन व्हाट हैपन, ही एग्जिस्ट। तो अब चला जाता है।
So this is the end of Julius Caesar Act 1 Scene 2. Then champs, I think that you have understood the Act 1 Scene 2. This is the part 2. Part 1 is already there in my channel, and I have also given the part 1 means Act 1 Scene 2 का जो part 1 है इस description box में भी दिया गया है. You can watch that one. लेकिन चैम्प्स मुझे लग रहा है, आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर एंजॉयिंग जूलियस सीजर. मुझे लग रहा है कि यार आप लोगों जूलियस सीजर एंजॉय कर रहे हो. यार जूलियस सीजर को हम लोगों फोड़ेंगे, ठीक है. विल जस्ट धूम मचाएंगे जूलियस सीजर लेके. भाई यार बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम टॉप क्लास मार्क्स लेके आएंगे. अपना किताब को बगल में रखिए, जस्ट कीप योर बुक बिसाइड यू एंड रीड माई लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस. बहुत अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को वीडियो चला के आप लोगों को सुनिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा. इन माई फोर्थकमिंग वीडियोस आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्ट 1 सीन 3 ऑल्सो. एक्ट 1 सीन 3 भी रहेगा, आप लोगों उसको पढ़िए. कोई भी डाउट्स रहेगा, इफ एनी डाउट्स इज देयर, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और माई ईमेल इज ऑल्सो देयर, यू कैन मेल मी ऑल्सो. लेकिन पढ़ाई का साथ मस्ती चलेगा, खेल कूद चलेगा. और इंग्लिश का पोटली है, कोई चिंता का बात नहीं है. इंग्लिश का पोटली आप लोगों का चैनल है, आप लोगों यहाँ पर मजे करिए, कोई भी कमेंट्स कुछ भी करिए, आपको जो भी दिक्कत होगा फील फ्री टू कमेंट्स. ओके चैम्प्स, आज इतना दूर रहेगा. देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.